Hello, and welcome you all to another part of the series. Let's learn data science together. In this video, we will be learning about the model evaluation. What is model evaluation? Model evaluation is something which is very essential to determine the effectiveness of a predictive model and its generalization ability on unseen data. It involves various metrics to assess the model performance, focusing on how well the model makes predictions and how errors impact specific use cases. तो इस वीडियो में हम मेनली दो टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, दैट इज परफॉर्म मॉडल इवैल्यूएशन and accounting for unequal error cost using Python. So let's get started. The model evaluation using Python. How do we evaluate models in Python? Evaluation मतलब चेक करना है कि हमारा मॉडल कितना करेक्ट है और कितने बेटर predictions देता है. So the common metrics we use include accuracy, precision, recall, F1 score, and ROC-AUC. The choice of the matrix depends on the specific objectives and characteristics of the data, such as class imbalance or the need for balance, precision, and recall. Let us now look at the formula for the following. Accuracy क्या होती है? It measures the proportion of correct predictions out of total predictions. तो accuracy का formula क्या होगा? Correct predictions upon total predictions. So true positives plus true negatives. उसने बोला कि ये गलत है, मतलब हाँ वो सही बता रहा था, सिगरेट पीना इज गलत. एंड ट्रू पॉजिटिव, ओके, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना इज सही. उसने पॉजिटिव बताया वो ट्रू है. तो ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव को हमने काउंट किया. कैसे? दैट दे आर द करेक्ट प्रेडिक्शंस एंड टोटल प्रेडिक्शंस. ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव को इंक्लूड करके. प्रेसिशन क्या होता है? इट इंडिकेट्स द प्रपोर्शन ऑफ पॉजिटिव प्रेडिक्शंस that were actually correct. Precision is crucial when false positives are costly. जब उसने बोल दिया, एक बंदा है, he went to the gym, उसने बहुत मेहनत की, लेकिन वो पतला नहीं हुआ, क्योंकि उसने उतनी ही एक्स्ट्रा अपनी डाइट बढ़ा ली. So what happens was, एक ने बोल दिया कि तू पतला हो गया, तो क्या मिला? फॉल्स पॉजिटिव. एंड उसको लगा कि ठीक है मैं तो खाऊंगा, तो भी मैं मोटा नहीं होऊंगा, मैं तो पतला होते जा रहा हूँ. तो फॉल्स पॉजिटिव ने उसको गलत तरीके से अफेक्ट कर दिया. उसे लगा कि भाई मैं तो गलत काम करूंगा, खाऊंगा ज्यादा, जिमिंग कम करूंगा, तो भी मेरा वेट डाउन होगा. सो फॉर दिस वी शुड कैलकुलेट द प्रेसिशन, दैट इज द ट्रू पॉजिटिव. एक ने आके बोला भाई तेरा वेट तो लॉस नहीं हो रहा क्योंकि तू इतना खा रहा है, तो दैट इज द ट्रू पॉजिटिव. So prediction indicates the proportion of positive predictions that were actually correct. Precision is crucial when false positives are costly. Precision is hence equal to true positive upon true positive plus false positive. तो precision अपन किस पे कैलकुलेट करते हैं? पॉजिटिव्स के ही ट्रू एंड फॉल्स के बेसिस पे वी कैलकुलेट द precision. Now what is recall? Recall measures the model's ability to identify all actual positive instances, focusing on minimizing the false negatives. So recall का formula होगा recall is equal to true positive upon true positive plus false negatives. And what is F1 score? F1 score combines precision and recall into a single matrix by calculating their harmonic mean. Useful for imbalanced data sets. F1 score is equal to 2 into precision into recall whole divided by precision plus recall. Now ROC AUC क्या होता है? ROC AUC मतलब रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक एरिया अंडर कर्व. AUC मतलब एरिया अंडर कर्व, ROC मतलब रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक. It plots the true positive rate against the false positive rate. A higher AUC indicates better model performance. हमारा जितना हायर AUC होगा उतना अच्छा अपना मॉडल का परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, यू रिमेंबर, integration area under the curve. Yes. So we have a library in Python, scikit-learn or sklearn, which provides a range of functions to calculate these matrix. जो matrix जिनके formula भी we have discussed. So इसका एक demo code क्या होगा? Accuracy calculate करेंगे, accuracy underscore score से, precision के लिए precision underscore score, recall के लिए recall underscore score, F1 के लिए F1 underscore score, and ROC AUC के लिए भी हम ROC underscore AUC underscore score, and then we are printing them. We'll discuss the code एकदम last में, पहले थोड़ी सी theory देख ले रहे हैं.
Now accounting for unequal error cost using Python कैसे होगा? So in some cases, errors have unequal costs. For example, in a medical diagnosis model, a false negative, missing a diagnosis, may be more costly than a false positive. मैंने एक वायरस का प्रेडिक्शन नहीं किया, भले ही से मैंने बाकी सारी चीजें कर दी, कुछ गलत बता दी, लेकिन मुझसे एक छूट गया, मिसिंग अ डायग्नोसिस, तो बाद में बहुत बड़ी एरर पोज कर सकता है. So when error costs are unequal, precision and recall need to be balanced based on their specific impact. One way to handle unequal error costs is by adjusting the decision threshold. For models that output probabilities, such as logistic regression, जिसमें अपनी डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड कितनी होती है 0.5, but this can be adjusted to prioritize minimizing specific types of errors. So Python में हम एडजस्ट कैसे कर सकते हैं डिसीजन थ्रेशोल्ड को? by selecting different probability outcomes, cutoffs. So by selecting different probability cutoffs, हम अपनी जो डिसीजन की थ्रेशोल्ड है उसकी वैल्यू को एडजस्ट कर सकते हैं. तो वही sklearn वाली लाइब्रेरी से हमने कंफ्यूजन मैट्रिक्स नाम की एक चीज को इंपोर्ट किया है, एंड देन वी आर एडजस्टिंग द डिसीजन थ्रेशोल्ड. 0.5 से क्या कर दिया, 0.7 कर दिया, एंड देन मॉडल डॉट प्रेडिक्ट अंडरस्कोर प्रोबा और ब्रैकेट में x दिया, फिर उसके बाद कोलन कॉमा 1 मतलब पूरा सिलेक्ट करने के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड डॉट एसाइड इंट. ये वाली चीज तो मुझे भी एज अ लर्नर समझ नहीं आ रही, बट वी विल अंडरस्टैंड दिस थोड़ा आगे जाके. कॉस्ट कंफ्यूजन मैट्रिक्स है, थोड़ा कंफ्यूजन बनता है, राइट? पढ़ लेंगे, थोड़ा लर्न कर लेंगे, थोड़ा समझ लेंगे, थोड़ा सीख लेंगे. फिर उसके बाद मॉडल को एवेल्युएट किया, कंफ्यूजन अंडरस्कोर मैट्रिक्स वाला फंक्शन लगा के एंड देन प्रिंट कर दिया. So another method is to apply a custom cost function that takes into account different penalties for false positives and false negatives. So by defining such a function, we can optimize the model based on specific error cost, further improving its application relevance. अब पूरे के लिए कॉमन कोड देख लेते हैं, फिर उसके बाद उसको लाइन बाय लाइन समझेंगे. So first we will import the necessary libraries, हमें जो libraries की need होगी. Then एक synthetic data set यहीं पे create कर लिया है, जिसमें 1000 samples लिए हैं. DF मतलब डेटा फ्रेम होता है. देन उसके बाद टारगेट हमने डिसाइड कर लिया, हमारा टारगेट वेरिएबल होगा y. फिर उसके बाद हमने जो टारगेट वेरिएबल वाला कॉलम है उसको ड्रॉप कर दिया, एंड एक में हमने सिर्फ टारगेट वेरिएबल वाला कॉलम ले लिया. तो एक बार लेट्स जस्ट प्रिंट की हमारे पास डेटा कैसा है, देन जाएंगे स्टेप 3 पे. तो हमारा डेटा कुछ ऐसा है, ये हमारा टारगेट वेरिएबल है, एंड देन हमारी टॉप 5 रोज हेड की हेल्प से प्रिंट हुई है. So, yep, this is how our data looks like. Then उसके बाद हम क्या करें, उसके बाद हमने डेटा को स्प्लिट कर दिया फीचर्स और टारगेट के बेसिस पे. Then we are initializing a train and initializing the model, and फिर उसको ट्रेन भी कर रहे हैं, कैसे? लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाले फंक्शन की हेल्प से. फिर डॉट फिट से हम उसको ट्रेन करते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. फिर उसके बाद मॉडल इवैल्यूएशन कर रहे हैं डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड के साथ. डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड हमारा 0.5 होता है. डॉट प्रेडिक्ट वाले फंक्शन की हेल्प से हम मॉडल इवैल्यूएशन करेंगे. फिर उसके बाद इवैल्यूएशन स्कोर जैसे ऊपर फंक्शन डिस्कस किए थे उसके बेसिस पे, देन इनके रिजल्ट्स प्रिंट करके. पॉइंट टू एफ मतलब वो दो वैल्यूज से राउंड ऑफ करके रिजल्ट देगा. देन उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाली हमने, गेट द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज फॉर पॉजिटिव क्लास. पॉजिटिव क्लास अपनी वो थी जिसमें अगर बूलियन वेरिएबल था तो उसमें 1 होना चाहिए. फिर उसके बाद कस्टम डिसीजन थ्रेशोल्ड यहाँ पे 0.7 डाल के चेक किया है, so that we can account for unequal errors. Then we are calculating matrix with the adjusted threshold, वही सेम ऊपर वाला calculation वापस से, and then printing them. So default threshold के साथ हमारी ये values आ रही है 0.83 से लेकर 0.87 तक, and उसके बाद हमने जब 0.7 कर दिया हमारे थ्रेशोल्ड को, तो हमारी 0.71 से लेकर 0.92 तक की वैल्यूज आ गई. दोनों में हमारे कंफ्यूजन मैट्रिक्स वी कैन सी कि अलग अलग आ रहा है, एंड वो स्कोर्स को प्रिंट कर रहा है ऑन द बेसिस ऑफ
what the functions are doing. So in this code, what are we performing? Model evaluation on a machine learning model. कौन सा वाला logistic regression वाला वो evaluating it with a default threshold that is 0.5 and उसके बाद adjusted threshold that is 0.7 to simulate the unequal error cause. तो हमें पता चल जाए कि ठीक है हमारी unequal error cause कैसी लग रही है एंड देन इसमें अपन बेसिकली देख सकते हैं कि उसने हमारे लिए 1000 सैंपल्स क्रिएट कर दी क्योंकि मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा डेटा सेट इंपोर्ट नहीं किया तो मैंने कोड में ही अपने सैंपल्स क्रिएट करवा लिए 10 फीचर्स एंड उसमें बाइनरी लेबल्स के साथ डेटा सेट हमारा क्रिएट हो गया। फिर मॉडल ट्रेनिंग हमने कैसे करी? लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को हमने ट्रेन किया है डेटा यूज करके। डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड रखा 0.5, एडजस्टेड थ्रेशोल्ड रखा 0.7 to account for unequal cost of false positive and false negatives and then re-evaluating the model। और इसमें matrix क्या किए हैं? For both evaluations we calculate the accuracy, precision, recall, FN score and ROCAC and then print a confusion matrix and classification report to understand the model's performance। अब थोड़ा सा लाइब्रेरीज के बारे में जान लेते हैं जो इम्पोर्ट करी है। कौन कौन सी? पांडास, ये वेरी वेल नो कि डेटा के साथ एनालाइजेशन एंड ऑल में काम आती है जो हमारा टैबुलर फॉर्म में होता है। एसक्यूएल डॉट मैट्रिक्स वाली जो लाइब्रेरी है, it is being used to import various evaluation metrics such as accuracy, precision, recall, etc. from scikit-learn library to assess the model's performance। फिर उसके बाद लॉजिस्टिक रिग्रेशन वाला फंक्शन किया है ताकि हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन परफॉर्म कर सकें एंड देन train underscore test underscore split to split our data into training and testing data set and then make underscore classification वाला फंक्शन क्यों इंपोर्ट किया है? To generate a synthetic classification dataset for testing। So यहाँ पे make underscore classification वाले function की help से we are generating a synthetic dataset with 1000 samples, 10 features and 2 target classes that is 0 and 1। n underscore samples में 1000 दिया that is the number of rows, features में 10 that is number of columns, classes में 2 that is binary target classes 0 and 1 and random state 42 दे रखा है so that it ensures that the random data generation is reproducible। Then pd.dataframe वाले function से क्या हो रहा है? It is converting the features x into a data frame with column names feature 0, feature 1 से लेकर feature 9 तक। ये रेंज और शेप वाली चीज यहाँ लगा दी, शेप से वो डायमेंशन लाएगा, रो कॉमा कॉलम वो आउटपुट देता है एंड 1 इज फॉर कॉलम, 0 इज फॉर रो। रेंज मतलब as you already know it is used to generate a sequence of numbers and here this is a formatted string and now when we have created the data set of 1000 rows and 10 columns we can split it into features and target। so हमने एक target variable ले लिया, उसको x वाले डेटा सेट में से हटा दिया एंड y वाले डेटा सेट में सिर्फ टारगेट वेरिएबल वाला चीज रखा। so dot drop वाले फंक्शन से क्या होगा? it will extract the feature columns that is all columns except the target into x एंड ये वाली चीज से क्या होगा? डेटा फ्रेम ब्रैकेट में टारगेट लिख दिया so it will extract only the target column into y। then we are splitting the data set into training and testing data set। test size रखी है 0.2 तो 20% of the total वो जाएगा अपना टेस्टिंग में, रेस्ट अपना जाएगा ट्रेनिंग में। रैंडम स्टेट यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज एंड x अंडरस्कोर ट्रेन और y अंडरस्कोर ट्रेन में अपना क्या जाएगा? y ट्रेन ये रहा, x ट्रेन ये रहा। इसमें फीचर्स फॉर टारगेट, फीचर्स एंड टारगेट फॉर ट्रेनिंग जाएंगे और टेस्ट में अपना फीचर एंड टारगेट फॉर टेस्टिंग जाएंगे एंड ट्रेन अंडरस्कोर टेस्ट अंडरस्कोर स्प्लिट से वी आर स्प्लिटिंग द डेटा सेट इनटू ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग डेटा सेट। फिर उसके बाद इनिशियलाइज किया और ट्रेन किया लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल को। कौन से फंक्शन यूज करके? लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। ब्रैकेट में इसमें रैंडम स्टेट दे दिया तो ये वाले फंक्शन से अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल क्रिएट हो गया एंड डॉट फिट क्यों यूज होता है? टू ट्रेन द मॉडल यूजिंग द ट्रेनिंग डेटा। फिर उसके बाद मॉडल डॉट प्रेडिक्ट वाला फंक्शन क्यों यूज किया? टू मेक प्रेडिक्शन यूजिंग द ट्रेन्ड मॉडल ऑन द टेस्टिंग सेट। इसलिए हमने ब्रैकेट में कौन सा दिया है? टेस्ट वाला डेटा सेट दिया है तो इसका डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड क्या होता है लॉजिस्टिक रिग्रेशन का? इट इज 0.5
and if the predicted probability for class 1 is greater than or equal to 0.5, it classifies the instance as 1, otherwise 0. अब क्या कर रहे हैं हम? कैलकुलेट इवैल्यूएशन मैट्रिक्स फॉर द डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड, ये वाली सारी चीजों का फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला नहीं बेसिकली फंक्शन से ही फॉर्मूला लग जाता है अपना जो ऊपर डिस्कस किए थे, एक्यूरेसी स्कोर, प्रेसिशन स्कोर के बाद रिकॉल स्कोर, देन एफएन स्कोर एंड देन आरसीएसी का स्कोर. Then we are printing them. Then here we are adjusting the threshold. Adjusting the threshold to 0.7, and उसके पहले what we have done is model dot predict underscore prob है, ब्रैकेट में हमने टेस्टिंग डेटा सेट दिया है. So क्या रिटर्न करेगा? It returns the predicted probabilities for both classes, that is 0 and 1. So we select the probabilities for class 1 using colon, मतलब पूरा की पूरे डेटा सेट में वो चेक करेगा, and 1 मतलब for class 1. क्लास 1 मतलब 0 एंड 1 वाली जो क्लासेस है उसमें 1 वाली क्लास, दैट इज द पॉजिटिव क्लास. सो पॉजिटिव क्लास की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है वो, सिलेक्ट कर रहा है वो, एंड देन रिटर्न क्या कर रहा है वो? दोनों की प्रोबेबिलिटीज रिटर्न कर रहा है. ये वाली चीज ऊपर समझ नहीं आई थी, बट अब शायद थोड़ी थोड़ी आ रही है. सो व्हाट इज इट रिटर्निंग? इट रिटर्न्स द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज फॉर बोथ क्लासेस. y अंडरस्कोर प्रॉब्स में हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी दोनों क्लास की, दैट इज 0 एंड 1, और हम सिलेक्ट क्या करेंगे इसमें से? प्रोबेबिलिटी फॉर क्लास 1. Are you a bit clear now? Now step 8 में हम क्या करें? कस्टम डिसीजन थ्रेशोल्ड डाल रही है, 0.7 डाल दिया, एंड देन एडजस्ट करने के लिए y अंडरस्कोर प्रॉप ग्रेटर देन इक्वल टू थ्रेशोल्ड. अपनी थ्रेशोल्ड क्या है? 0.7. जहाँ पे भी हमारा 0.7 से ग्रेटर है और डेटा टाइप उसका इंट है, तो वो चल जाएगा y अंडरस्कोर प्रेडिक्ट अंडरस्कोर adjusted में. So we are setting the threshold to 0.7, which means that only if the model is 70% sure that it should classify as 1, it will predict 1. So here it converts the predicted probabilities into binary predictions based on the threshold, 0 if it is below 7 and 1 if it is 0.7. जैसे अपन राउंड ऑफ नहीं करते कि अपना ठीक है, अगर अपने को राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100 करना है, तो मेरा अगर 50 आता है तो वो 100 बन जाता है, 51 होता है 100 बन जाता है, 49 होता है वो 0 बन जाता है. लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया? 70% वाला क्राइटेरिया लगा दिया. अगर हमारे पास 69 है तो वो 0 बन जाएगा, एंड अगर हमारे पास 71 है तो वो 100 बन जाएगा, दैट इज 1. देन उसके बाद हमारे एडजस्टेड थ्रेशोल्ड के साथ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को कैलकुलेट किया. देन y अंडरस्कोर प्रेड अंडरस्कोर एडजस्टेड में जिसको हमने स्टोर किया था, इसके बेसिस पे हमने कैलकुलेट करे न्यू मैट्रिक्स, उनको प्रिंट करा, उनको कैलकुलेट करा, उनको प्रिंट करा, एंड देन वी आर डन. तो इसमें से अपन दो तीन की टेकअवेज ले सकते हैं. तो डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड अपनी कितनी होती है लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए? 0.5, ये याद रखने वाली बात है. So this is typically used in classification models, but sometimes it is not ideal, especially if there are unequal calls for false positives and false negatives. जैसे हमने अभी 0.7 वाली चीज लेके करी. एंड एडजस्टेड थ्रेशोल्ड क्या होता है अपने? By changing the threshold, we make the model more conservative, which can reduce false positives at the cost of potentially increasing the false negatives. So by this video, we can know that model evaluation helps us to assess a model's performance using the metrics like accuracy, precision, and recall. बाकी दो क्या थे अपने FN score और ROCAUC. And adjusting the decision threshold is important when dealing with unequal error costs, such as the default 0.5 threshold might not always be optimal. So by fine-tuning the threshold, we can balance the false positives and false negatives to better meet the business needs. ऑल्सो आई थिंक आई मिस्ड अ पॉइंट, कंफ्यूजन मैट्रिक्स बताना रह गया. ये क्या करता है? ये प्रिंट करता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स वाले फंक्शन से. इसमें y अंडरस्कोर टेस्ट और y अंडरस्कोर प्रेडिक्शन अंडरस्कोर डिफॉल्ट वाला हमने दिया है एग्जाम्पल के लिए.
So it will show how many predictions were true positive, true negative, false positive and false negatives. इसको देख लेते हैं आउटपुट में. तो ये रहा हमारा confusion matrix. True positive, true negatives, false positives and false negatives. So that's it for the video. See you in the next one. Ta-da! Also, thank you very much for bearing me for this long. Bye-bye.